Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 12 SPCC Part 2, Chapter number 2, Share transfer and transmissions of the share. So as today we are going to start a new chapter, so today we are here to see the part 1 of the chapter. So before starting the new chapter, let us have a short discussion about the portion that we are going to see on this chapter. First of all, we are going to see the introduction, and after that we are going to know about the correct meaning of the share transfer and what is the need of the share transfer and the importance of the share transfer. After seeing the importance, we are going to see what is the proper way or the procedure of doing the share transfer. After knowing all details about share transfer, we are going to see the next topic, share transmission. What is the meaning of share transmission and why it is mandatory? What is the situation in which share transmission is mandatory? After that, the procedure should be carried out on the share transmission. That portion we are going to see in a very detailed manner. After that all portion, we are going to see the difference between the share transmission and the share transfer, and a particular what is the duties of the secretary in the share transfer and the transmission that we are going to cover up in this chapter. So I hope you all have understood that what topic you are going to learn in this chapter. So now, without wasting the time, let us move on with the line to line explanation of the chapter from the textbook in the further PDF. So students, now let us move on with the chapter number 2, transfer and transmissions of share. So as I said, what we are going to learn, we discussed already, but see the index, meaning of the share transfer, importance of the share transfer, provision, what are the provision for share transfer, procedure, if it is a physical share transfer, then what procedure should be done, and in that also total procedure share transfer or the partial share transfer procedure, and if it is in the demat, then what is the procedure that we are going to see, and the duties of the secretary regarding share transfer. After that, the transmission of share is to be seen, compulsory transfer of share, meaning and circumstances. Then we are going to see the procedure of share transmission, difference between share transfer and share transmission. So this topic we are going to cover up in this chapter. So let's move on with the introduction. As usual, I am going to read it out. Listen it out carefully. Partnership firm came into existence due to limitations of sole proprietorship, and limitations of partnership firm have given birth to company formation. When partnership separates in a partnership firm, the procedure is long and complex. In a company, no such procedure is required. In public company, if the shareholders sell his share, his ownership ends. Share can be freely sold or purchased like any product. Free transferability of share is an important characteristic of a company. Not only that, if a person wants to purchase share of the same company, again he can purchase the share and he can be owner of that portion. This right is absolutely right, which cannot be prohibited by the company. As shareholder can voluntarily transfer its share as per the provision of the Company Act. Moreover, when shares are compulsorily transferred by the operation of law, then such transfer is called transmissions of share. In this chapter, we will learn about the share transfer and transmission of share. So, partnership firm. सबसे पहले बिजनेस जो है कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस कब हुआ? स्टार्टिंग ऑफ द इनिशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी में सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा देखे गए थे. 11th के OCM में आपने इसको डिटेल में देखा होगा.
पार्टनरशिप फर्म कब आया? तो सोल प्रोप्राइटरशिप जब फेल होने लगा, जब एक अकेला इंसान बिजनेस को हैंडल नहीं कर पाता, जब वो एक्सपांड होता है, उस टाइम पे पार्टनरशिप नाम का एक बिजनेस नया आया। और पार्टनरशिप फर्म कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशन से ही शुरू हुआ। बट एज आई सेड, हर एक चीज का एक लिमिटेशन आता है तो कोई नई चीज आती है। इन द सेम मैनर जैसे पार्टनरशिप फर्म का भी एक लिमिटेशन देखा गया, उस टाइम पे एक नया फर्म ने पार्ट लिया, वो था कंपनी। जब पार्टनरशिप एक्ट भी कम पड़ जाए और उससे भी कुछ अच्छा चाहिए, ऐसा वाला सिचुएशन आया, तब जो है कंपनी का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया। जब पार्टनर सेपरेट होते हैं पार्टनरशिप से, यू नो दैट 3 या 4 पार्टनर होते हैं, वो जैसे पार्टनर्स अलग होते हैं, फिर नया होता है, सो रिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म होता है, फिर अगेन रिफॉर्मेशन ऑफ अ फर्म होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में वो बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर माना जाता है। बट कंपनी के अंदर ऐसा कोई लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के अंदर पब्लिक कंपनी हो कि प्राइवेट कंपनी हो, हर किसी के अंदर यू नो दैट कंपनी कैसे बनती है, तो शेयर होल्डर से बनती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बट वो शेयर होल्डर्स के लिए ही काम करते, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में उनको पार्ट मिलता है, बट ज़्यादातर ओनर ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर माने जाते। तो ओनर अगर यहाँ पे ओनर ना रहना चाहे तो वो इजीली क्या कर सकता है, अपने शेयर को किसी को भी फ्री में भी दे सकता है, या उसे बेच भी सकता है, या अगर किसी और को ओनर होना है तो वो उसे खरीद भी सकता है। तो इस तरीके से कंपनी में कहीं ना कहीं पब्लिक हो कि कहीं पे हो, उस पोर्शन ऑफ बाइंग द शेयर एंड सेलिंग द शेयर बहुत ही फ्रीली देखा जाता है। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी यानी कहीं ना कहीं फ्री में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर करने का कोई चार्ज नहीं होता है, सिर्फ शेयर का जो रेट होता है उसी के ऊपर उसे चार्ज किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई इंसान वही शेयर को वापस खरीदना चाहता है, जैसे मैं थी, मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा और मुझे लगा कि अब मुझे पैसे ये शेयर की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं इसे बेच देती हूँ, तो मैंने उसको बेच दिया। मैंने 100 रुपीज़ में खरीदा, मैंने 120 में बेचा, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट देखा। उसके बाद मुझे थोड़े दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि चलो ना, रिलायंस में डिविडेंड अच्छा मिल रहा था, फिर से मैं खरीद लूँ, तो मैं उसे फिर से भी खरीद के उस कंपनी का ओनर इन द सेंस पूरे कंपनी का नहीं, वो पर्टिकुलर शेयर, अगर मैंने 100 शेयर खरीदा तो उस 100 शेयर की मैं ओनर बन सकती हूँ। इस तरीके से ये राइट जो है, जो कि सबसे सही राइट है ऐसा माना जाता है, और इसे कंपनी प्रोहिबिट नहीं कर सकता। नहीं भाई आप शेयर नहीं खरीद सकते, नहीं भाई आप शेयर नहीं बेच सकते, इस तरीके से कंपनी कुछ नहीं बोल सकता। तो शेयर होल्डर्स जैसे कि मैं वॉलंटरीली अपनी इच्छा से जब शेयर को बेचूं या किसी और के नाम करूं तो उसे शेयर ट्रांसफर बोला जाता है कंपनी एक्ट के हिसाब से। बट कंपल्सरीली मुझे नहीं बेचना है, बट कंपल्सरीली कानूनी तौर पे ये बोला जा रहा है कि आपको शेयर बेचना ही पड़ेगा और आप बेचो। इस तरीके से जबरदस्ती जब मुझसे वो चीज़ करवाया जा रहा है और उस टाइम पे कानून की वजह से मैं भी चुप होके उसे बेचूं, तो उसे कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बोला जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर शेयर ट्रांसफर और शेयर ट्रांसमिशन के बारे में हम डिटेल में देखने वाले। सो लेट्स मूव ऑन विद द मीनिंग ऑफ द शेयर ट्रांसफर। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. In a general sense, share transfer is the act in which a shareholder voluntarily sells his shares to another, waiving his right to ownership and transferring the title of the share in the name of the अदर। जनरल में अगर कॉमन वे में अगर हम बात करते शेयर ट्रांसफर का मतलब ये एक ऐसा एक्ट, ये एक ऐसा एक्टिविटी जहां पे शेयर होल्डर यानी कि मैं मान लेते एग्जांपल में मैं शेयर होल्डर हूँ रिलायंस कंपनी के शेयर का, मेरे पास 100 शेयर है जिसका वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो 100 इंटू 100 1000 रुपीज़ का शेयर मेरे पास है, ऐसा हम बोल सकते 1000, एम आई करेक्ट? 10,000 रुपीज़ का शेयर मेरे पास है। सो अब अगर मैं चाहूँ ये 10,000 रुपीज़ का शेयर बेचना है, बट 120 रुपीज़ में बेचना चाहती हूँ, यानी 12,000 में मैं इसे बेचना चाहूँ, उस टाइम पे मैं किसी और इंसान जो लेने के लिए रेडी है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं XYZ लेने के लिए रेडी है, उसके पास अपने विलिंगनेस के साथ वॉलंटरीली किसी के दबाव पे या जोर जबरदस्ती पे नहीं, खुद के मर्जी से जब मैं उसे बेचती हूँ उसे शेयर ट्रांसफर बोला जाता है। यहाँ पे
अब उस शेयर का जो ओनरशिप मेरे पास था वो ओनरशिप सामने वाले XYZ के पास चला जाएगा। शेयर पे मेरा नाम होता है कि हाँ सुलक्षणा सेंगुंदर को ये शेयर बिलोंग करते, इतने शेयर्स बिलोंग करते, तो वो उसका नाम क्या हो जाएगा, XYZ को बिलोंग होता है। इस तरीके से ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इसे कहीं ना कहीं शेयर ट्रांसफर बोला जाता है कॉमन सेंस में। लेट अस सी द डेफिनेशन। When a shareholder in anticipation of approval of company voluntarily waives his title ownership right of shares in favor to the other person where there is a transfer of title ownership to the share, it is called transfer of share। जो ऊपर हमने देखा उसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में समझाया गया। जब भी एक शेयर होल्डर, ठीक है, कंपनी की अप्रूवल में एंटीपेशंस ले लेता है, यानी ठीक है चलो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा एक अप्रूवल ले लेता है वॉलंटरीली, ठीक है, कंपनी को हो कि ना हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, वॉलंटरीली ये चाहता है कि उसका जो शेयर्स है जो उसके नाम पे यानी जो उसके ओनरशिप में है वो किसी और इंसान को देना चाहे, और उस टाइम पे ट्रांसफ़र करते वक्त उसकी ओनरशिप वो इंसान के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहे तो उसे कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर माना जाता है। इन एंटीपेशंस ऑफ अप्रूवल बाय कंपनी। देखो इन एंटीपेशंस मतलब एंटीपेशंस का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेशन नहीं, कहीं ना कहीं उससे दूर, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे इसको ट्रांसफ़र करना है, ऐसा कंपनी को ऑर्डर देके, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी को उसका शेयर होल्डर है, ओनर है, तो कंपनी को क्या बोलेगा मुझे ये शेयर नहीं रखना है, मुझे किसी और को बेचना है, तो आप मुझे ये प्रोसीजर करके दो, तो कंपनी को करके भी देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट पैराग्राफ लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। व्हेन अ शेयर होल्डर सेल्स हिज ओन शेयर टू द अदर और वेव्स हिज राइट, देन हिज ओनरशिप और मेंबरशिप इज ओवर। The person who has purchased obtained membership ownership. Here one thing should be noted that his procedure is treated to be complete only when the transfer is approved by the कंपनी। तो शेयर होल्डर क्या करता है, उसके जो खुद के शेयर्स होते हैं जिसपे उसका हक है, उसकी ओनरशिप और मेंबरशिप किसी और इंसान के नाम पे करना चाहता है। उस टाइम पे जो इंसान उस शेयर को खरीदता है वो उसका ओनर और मेंबरशिप बन जाता है, यानी उसकी मेंबरशिप कंपनी में आ जाती है, वो उसका ओनर बन जाता है। इस तरीके से ये प्रोसीजर देखा जाता है। बट इस प्रोसीजर के अंदर एक रूल मैंडेटरी है। व्हाट इज दैट रूल? जैसे कि मैंने ऊपर के उसमें बताया, आप भले ही ट्रांसफ़र करो बट कहीं ना कहीं अप्रूवल लास्ट में कंपनी का लेना पड़ता है कि मैं इस पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और आप ये प्रोसीजर मुझे करके दो, क्योंकि प्रोसीजर फाइनली किसको करना पड़ता है, तो कंपनी को करना पड़ता है। बट अगर कंपनी अप्रूव नहीं किया, कंपनी के हाथ में अप्रूवल का पोर्शन होता है, अगर कंपनी ने अप्रूव नहीं किया तो फिर वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, कंपनी अप्रूवल दे ही देता है। कंपनी को क्या लेना देना, उसको तो डिविडेंड देने लेने से मतलब है, ये देखा जाता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द शेयर ट्रांसफर। So I am going to read it out, listen it out carefully. Share transfer is an important procedure. Shareholders use their right to transfer share with the consent of the company. Share is a part of capital of a company. It is a financial interest of a shareholder. It is movable asset for shareholder. Shareholder has right to sell, right to gift and right to lease his share. For this, Lord Blackburn has said main objective to start joint stock company is to provide easy transfer of shares to their member. Purchase and sales of shares is conducted in market. This is a source of capital, so it is known as the barometer of the development of कंपनी। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस शेयर ट्रांसफ़र की क्या इम्पोर्टेंस है। शेयर ट्रांसफ़र एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर माना जाता है। शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं पूरा हक है कि उनका जो शेयर है वो कंपनी के कंसेंट से किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते। तो शेयर कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो शेयर हम कब खरीदते हैं, जब हम उसमें कैपिटल डालते हैं। तो कंपनी का कैपिटल जो पार्ट होता है उस पार्ट का एक शेयर पार्ट माना जाता है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट
इंटरेस्ट, डिविडेंड मिलेगा, मेरा फायदा होगा, इस तरीके से फाइनेंशियल इंटरेस्ट से ही शेयर होल्डर उधर पैसे लगाता है। शेयर होल्डर्स के लिए शेयर्स क्या है, मूवेबल असेट है। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव कर सकते हैं। शेयर होल्डर को पूरा हक है कि वो अपने शेयर को बेचे, किसी को गिफ्ट कर दे फ्री में, या लीज में, चल 10 साल तक डिविडेंड तू ले, इस तरीके से लीज में भी दे सके। इसीलिए लॉर्ड ब्लैकबर्न कहते हैं सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जॉइंट स्टॉक कंपनी का शुरू होना क्या था, तो शेयर को इजीली ट्रांसफर करना। क्यों? क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कंपनी आने के पहले पार्टनरशिप फर्म था। पार्टनरशिप फर्म में जो शेयर होता है पर्टिकुलर पार्टनर की हो, वो किसी को भी ऐसे ही नहीं दे सकता। उसे देने के लिए सबसे पहले फर्म को रिजोल्यूशन लिक्विडेशन करना पड़ता है, फिर उसको रिफॉर्म करना पड़ता है। कैपिटल को वापस रिफॉर्म करते हुए पार्टनर में नए पार्टनर को ऐड करने के लिए भी एक लंबा प्रोसीजर देखा जाता है। वो चीज़ों को कम करके इजी वे में किया जाए, इसीलिए जो है कंपनी शुरू किया गया था। परचेज करना या शेयर करना शेयर मार्केट के अंदर शेयर को वो बहुत ही इजी तरीके से देखा जाता है। सोर्स ऑफ कैपिटल कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए एक बैरोमीटर के तरीके से और कैपिटल के सोर्स में ये शेयर्स देखे जाते हैं कंपनी के अंदर। सो नाउ लेट अस सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस, यानी कि शेयर ट्रांसफर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, शेयर ट्रांसफर जनरेट्स इनकम फॉर द गवर्नमेंट। शेयर ट्रांसफर increase in the government increase because the government has imposed tax on it। शेयर ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो इनकम किसको क्रिएट करता है, तो गवर्नमेंट को क्रिएट करता है। शेयर ट्रांसफर जितना इंक्रीज होता है उतना गवर्नमेंट का इनकम इंक्रीज होता है। कैसे होता है, तो शेयर ट्रांसफर जब भी हम करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट का एक टैक्स लगता है, उस टैक्स के वजह से गवर्नमेंट ज्यादा इनकम जनरेट कर पाता है। सेकेंड, शेयर होल्डर गेट कैश ऑन सेल ऑफ शेयर। अगर आपके पास शेयर है, आप उसे बेचोगे तो ऑब्वियसली आपको उसके बिहाफ में पैसे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को कैश मिलता है जब भी वो पर्टिकुलर शेयर को बेचते हैं। परचेसर ऑफ शेयर्स गेट्स राइट्स ऑफ ओनरशिप। जो भी उस शेयर को खरीदता है उसे कहीं ना कहीं ओनरशिप का राइट मिल जाता है। राइट इन द सेंस वो उसका ओनर बन जाता है। शेयर होल्डर इज एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ मार्केट वेरिएशन। तो मार्केट वेरिएशन का भी उसे बेनिफिट मिलता है। जैसे मैंने बोला, मैंने 100 में खरीदा बट मैं 120 मिल रहा था, यानी 2000 के लिए मैं बेच भी सकती हूँ। तो ये जो वेरिएशन है, अभी मार्केट में उस शेयर का भाव क्या है, मैं सोचूं कि मेरे को 150 में बेचना है तो मैं बेच सकती हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल। मार्केट में उसका वैल्यू क्या चल रहा है, मैंने 100 में खरीदा, अभी मार्केट में उसका वैल्यू 120 चल रहा है, तो मैं 120 में बेच सकती हूँ। इस तरीके से मार्केट वेरिएशन के हिसाब से मुझे बेनिफिट मिल सकता है। इन्वेस्टेड फंड ऑफ इनएफिशिएंट यूनिट फ्लोज टू एफिशिएंट यूनिट। हम जो भी फंड इन्वेस्ट करते हैं, अगर इनएफिशिएंट यूनिट पे हमने किया है तो कहीं ना कहीं वो एफिशिएंट यूनिट पे भी फ्लो कर सकता है। शेयर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ग्रोज एज अ रिजल्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर। आपने देखा होगा शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम काफ़ी बात करते हैं। इकोनॉमिक, OCM और SPCC इस टॉपिक में, यानी कंपनी की अगर बात है तो शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट तो होता ही है। यानी कंपनी में, कैपिटल मार्केट में क्या, मनी मार्केट, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो शेयर मार्केट में भी यू नो दैट ICBI के रूल से स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड चलता है। तो ये सारी मार्केट के अंदर रिजल्ट ये ग्रो कैसे होता है, ये डेवलप कैसे होता है, तो शेयर ट्रांसफर के वजह से ही डेवलप होता है। शेयर मार्केट इतना क्यों चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं और अच्छे भाव में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और अच्छे भाव में बेच रहे हैं, इस तरीके से शेयर मार्केटिंग को ग्रो कर रहे हैं। फ्री शेयर ट्रांसफर लीड टू एन इंक्रीज स्पेन एंड स्कोप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। अगर कोई फ्री शेयर है, यानी इन द सेंस हमने देखा कि गवर्नमेंट टैक्स लेता है बट कंपनी उसका कोई चार्ज नहीं लेता, आप कभी भी, और टैक्स आपको थोड़ी भरना है, जो खरीदता है वो भर रहा है। तो इस तरीके से फ्री में आप ट्रांसफर कर रहे हो और बेनिफिट देख रहे हो, तो उसके वजह से क्या होता है, उसका स्पैन, शेयर का जो स्पैन यानी लाइफ पीरियड है वो बहुत लंबा देखा जाता है और उस वजह से कंपनी का स्कोप भी डेवलप होता हुआ नजर आता है। यहाँ खत्म होता है 7 इंपॉर्टेंस ऑफ द शेयर ट्रांसफर, कि शेयर ट्रांसफर होने से क्या क्या फायदे होते हैं एक गवर्नमेंट और कंपनी और ओनर। ये तीनों टॉपिक के ऊपर 7 पॉइंट्स हमने देखा। सो लेट अस रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। Provision for transfer is specified in the article of association. Sometimes there may be restriction in private company, but the right of the shareholders cannot be taken away by imposing prohibition on it. A member can, when he wishes, sell or gift his shares to others. हाँ, provisions है
अगर आपको शेयर को ट्रांसफर करना है तो ऑलरेडी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजन दिया गया है उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही आपको करना पड़ता है। बट कभी कभी प्राइवेट कंपनी क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन करता है कि नहीं अभी आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे नया शेयर इशू हो रहा है उस टाइम पे शेयर ट्रांसफर नहीं होता है। यू रिमेंबर दैट, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में। सो कहीं ना कहीं ऐसा एक शेयर होल्डर का राइट जो है कुछ टाइम के लिए बंद, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, बट प्रोहिबिटेड नहीं किया जाता है। प्रोहिबिटेड यानी उसको हक उसका छीन नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए रोक सकते। तो उसके ऊपर आप पूरे टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए आप बेच नहीं सकते, ऐसा आप प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं एक मेंबर कभी भी अपना शेयर बेच सकता है या गिफ्ट कर सकता है अपने मर्जी के हिसाब से। So students, I hope you all have understood the portion. आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा. So now let us move on with the brief discussion of the topic that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the portion in a very well manner. So what we have seen in the today's video, we have seen about the introduction and the meaning of the share transfer. After that we have seen the importance of the share transfer. So let us have a short summarization of the topic that we have seen. First of all, let us discuss about the introduction of the शेयर ट्रांसफर। सो शेयर ट्रांसफर की इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही कंपनी के अंदर जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था, पार्टनरशिप फर्म क्या था और कंपनी क्या है और उसके अंदर शेयर ट्रांसफर का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले एशियन टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यानी अकेला एक इंसान बिजनेस को हैंडल करता था, बट धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारा लिमिटेशन देखने को मिल रहा था। जैसे जैसे वो लिमिटेशन को ओवरकम करने की कोशिश की तो उस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म जो है एग्जिस्टेंस में आया, जिसके अंदर 3-4 लोग मिलके पार्टनरशिप में हर एक काम करने लगे और प्रॉफिट को शेयर करने लगे। बट उसमें भी जैसे कि हर चीज में एक एडवांटेज होता है तो लिमिटेशन होता है। इन द मैनर एक पार्टनरशिप फर्म के भी कुछ लिमिटेशंस धीरे धीरे आने लगे। जब भी एक पार्टनर जाता है या एक नया पार्टनर ऐड होता है, उसकी कैपिटल डिसइन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है तो उस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर देखा गया। एंड देन द नीड ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी केम। वंस द जॉइंट स्टॉक कंपनी केम, उसके अंदर ये पोर्शन को बहुत ही इजी कर दिया गया। यानी अगर कोई इंसान उसके अंदर पार्टनर बनना चाहता है तो वो शेयर खरीद के कर सकता है और जैसे ही उसे पार्टनर नहीं रहना या ओनर उस कंपनी का नहीं रहना है तो वो उसे छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है उस शेयर को बेच के। सो इस तरीके से जब भी एक शेयर होल्डर पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बेनिफिट देखता हुआ उसके अंदर एंटर होना चाहता है तो वो उसके शेयर खरीद के एज अ ओनर वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ शेयर जो उसने खरीदा उसके ओनर के बिहाफ में एक्ट कर सकता है। बट अगर अब वो विल नहीं करता है कि वो उसके साथ कंटिन्यूटी करे तो वो उसके शेयर्स को वॉलंटरीली किसी को भी बेच सकता है और कंपनी इस चीज में उसको रोक भी नहीं सकता। इसे कहीं ना कहीं शेयर ट्रांसफर बोला जाता है। ये तो बात हुई वॉलंटरीली करने का, बट अगर कानूनी तौर पे कंपनी किसी इंसान को ये बोलता है कि आपको ये शेयर बेचना ही पड़ेगा कंपल्सरीली और उससे वो बिकवाता है तो उसे कहीं ना कहीं शेयर ट्रांसमिशन बोला जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं हम शेयर कैपिटल के टॉपिक के ऊपर शेयर ट्रांसफर और शेयर ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल में देखने वाले। सो रेदर देन दैट उसके बाद हमने देखा मीनिंग ऑफ द शेयर ट्रांसफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शेयर ट्रांसफर? शेयर ट्रांसफर की अगर हम बात करते जनरल सेंस में, कॉमन वे ऑफ मीनिंग की अगर हम बात करें सो कॉमन वे में हम ये बोल सकते हैं जब भी एक शेयर होल्डर उसके पास जो शेयर है जिसकी उसकी ओनरशिप मानी जाती है उस शेयर को वॉलंटरीली अपने मर्जी से किसी को भी बेचे, उस ओनरशिप को सामने वाले पर्सन के नाम पे चेंज करके दे, फ्रीली करे क्या उसको सेल करके करे, दैट इज हिज ओपिनियन। बट अगर वो इस तरीके से करके ओनरशिप को ट्रांसफर करता है तो उसे शेयर ट्रांसफर बोला जाता है।
अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, वेन एवर अ पर्सन अ शेयर होल्डर वॉन्ट्स टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द शेयर पोर्शन दैट ही इज हैविंग टू द अनदर पोर्शन ऑन द नेम ऑफ हिज ओनरशिप, देन इट इज कंसिडर एज द शेयर ट्रांसफर। और इसके अंदर कंपनी की कंसेंट यानी ये प्रोसीजर कंपनी ही करके देता है, बट कंपनी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लेता है, फ्री ऑफ चार्ज जो है शेयर ट्रांसफर किया जाता है। तो प्रोविजन के हिसाब से कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोविजन होता है। सो प्रोविजन के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी के जो भी शेयर्स है, कोई भी शेयर होल्डर्स अपने मर्जी के हिसाब से किसी को भी दे सकता है, खरीद सकता है या बेच भी सकता है। इवन कोई और है तो उसे खरीदना है तो वो उसे खरीद भी सकता है। इस तरीके से जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसमें जो एग्जिस्टिंग ओनर है उसका नाम हटा के नए ओनर का नाम डाल दिया जाता है, और जैसे ही नए ओनर का नाम आता है तुरंत ही जो पुराना ओनर था उस शेयर का, उसका पूरा हक कंपनी में से खत्म हो जाता है। कंपनी के रिलेटेड उसका कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी नहीं आता, इवन कंपनी का भी उस पर्सन से कुछ लेना देना नहीं होता है, ये माना जाता है। नेक्स्ट हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ द शेयर ट्रांसफर, जिसके अंदर हमने 7 टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर की अगर हम बात करते तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए शेयर ट्रांसफर भले ही फ्री में होता हो कि कैसे भी करता हो, बट शेयर ट्रांसफर करने के लिए ऑलरेडी कुछ प्रोविजंस दिए गए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं, उसके एक लीगल प्रोसीजर देखा जाता है। बट देन ऑल्सो शेयर ट्रांसफर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? एक शेयर होल्डर को हक है कि वो कभी भी अपने शेयर को किसी को भी बेच सकता है। शेयर होल्डर में शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कैपिटल जो एक शेयर होल्डर ने खरीदा। अब शेयर होल्डर का जो शेयर होता है वो मूवेबल असेट होता है, उसे कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। शेयर होल्डर की राइट होता है कि उसे बेचे, गिफ्ट करे, खरीदे या उस शेयर के साथ वो कुछ भी कर सकता है। बट एज आई सेड कंपनी की कंसेंट के साथ उसे ये चीज करना पड़ता है। कंपनी उसे रोक नहीं सकता है कि आप ये शेयर बेच नहीं सकते, बट अगर कंपनी फाइंड अप करती है ये कुछ गलत है तो फिर वो रोक सकता है। इसीलिए जो एक इकोनॉमिक्स या ब्लैकबर्न्स ये कहते हैं कि इजीली शेयर ट्रांसफर करने के लिए ही जॉइंट स्टॉक कंपनी को लाया गया था, और इससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सारी स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक और कंपनी के रूप में भी देखा जाता है। 7 पॉइंट के अंदर हमने डिटेल में देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी शेयर ट्रांसफर होता है तो उससे गवर्नमेंट का फायदा होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसमें टैक्स इंपोज करता है, और जितना शेयर ट्रांसफर ज्यादा उतना गवर्नमेंट का इनकम ज्यादा। गवर्नमेंट के हिसाब से तो वो बेनिफिशियल हो गया। सेकंड, कंपनी के अंदर में भी जब शेयर ट्रांसफर देखा जाता है तो उसके अंदर कोई बेनिफिट कंपनी को नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं जो है कंपनी एज एन असिस्टेंट काम करके देता है, तो शेयर होल्डर का यहाँ बेनिफिट होता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर? शेयर होल्डर की अगर हम बात करते तो शेयर होल्डर अपना शेयर किसी को भी मार्केट वेरिएशन के हिसाब से बेच सकता है और उसका बेनिफिट देख सकता है। रेदर देन दैट कंपनी काफी बार जो है देखा जाता है कि शेयर इंपोज होता है, यानी शेयर ट्रांसफर में प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। जैसे कि हमने देखा प्रीवियस चैप्टर के अंदर क्या देखा कि जब भी शेयर री इशू होता है उस टाइम पे या शेयर फोरफिचिंग किया जा रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है, शेयर को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो उस रिस्ट्रिक्शन के टाइम पे वो नहीं कर सकते, बट ओवरऑल ओनली वो कहीं ना कहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते? प्रोहिबिशन एक शॉर्ट टाइम के लिए लगाया जा सकता, बट उनका हक कंपनी से छीना नहीं जा सकता। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी में एक जो शेयर होल्डर होता है वो कभी भी अपना शेयर अपने मर्जी के हिसाब से बेच या खरीद सकता है, या तो सेल करता सकता है, या तो किसी को गिफ्ट भी कर सकता है। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.